Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics Infinity. Today's article is Fourier transforms. So Fourier transform को हम लोग represent करते हैं capital F of k of a function small f of x where x की range क्या है हमारी minus infinity to plus infinity. If we have a function fx of x where x has a range between minus infinity to plus infinity, then its Fourier transform f of k is defined as 1 upon under root 2 pi integration minus infinity to plus infinity exponential minus iota kx fx dx. So this is the Fourier transform of a function fx and it is represented by capital F of k. Now from here we can define fx also. Small fx is equal to 1 upon under root 2 pi integration minus infinity to plus infinity capital F of k exponential iota kx dk. This is called the Fourier inversion formula. Okay, Fourier inversion formula, and this function fx is called the inverse Fourier transform of capital F of k. That is the Fourier transform ka inverse Fourier transform. Okay, now next is the Fourier sine transform. One more important thing here, that the multiplication of these coefficients 1 upon under root 2 pi and 1 upon under root 2 pi in capital F of k, that is the Fourier transform, and in fx, that is the inverse Fourier transform. यहाँ पर जो हमारे कोफिशिएंट्स होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए 1 अपॉन 2 पाई. अब वो किस तरह से डिवाइड हो सकती है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एफ के में और 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एफ एक्स में हो सकता है, या 1 एफ के में हो सकता है यहाँ पर इसकी जगह पे. ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई की जगह 1 यहाँ पर और 1 अपॉन 2 पाई कंप्लीट यहाँ पर हो सकता है हमारा. ठीक है, या तो फिर क्या हो सकता है, 1 अपॉन 2 पाई यहाँ पर हो सकता है और 1 यहाँ पर हो सकता है. इम्पोर्टेंट थिंग क्या है हमारी कि इन कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लिकेशन 1 अपॉन 2 पाई ही होनी चाहिए. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म दो टाइप का है हमारा, एक है इनफाइनाइट, एक है फाइनाइट. लेट अस डिफाइन और लेट अस कंसिडर अ फंक्शन एफ एक्स that is an odd function of x in the range 0 to infinity. Then the Fourier integral theorem says that fx is equal to 2 upon pi integration 0 to infinity dk sin kx again integration 0 to infinity ft sin kt dt. Now we have the Fourier sine transform fsk. This s here represent the sine transform. Okay, now the Fourier sine transform is defined as under root 2 upon pi integration 0 to infinity ft sin kt dt. Using this integral in this equation number 3, what we get that fx is equal to 2 अपॉन पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 अपॉन पाई इंटू अंडर रूट 2 अपॉन पाई. उसमें से एक अंडर रूट 2 अपॉन पाई हमारा ये वाला है, इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ टी साइन के टी. दिस इज द सेम थिंग. तो हम लोग इस इंटीग्रल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ एस के लिख सकते हैं. हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, अंडर रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी के साइन के एक्स, हियर इट इज़ डी के साइन के एक्स इंटू इस इंटीग्रल की जगह हमारा क्या है, ये एफ एस के फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एस के. सो हमारा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ एस के साइन के एक्स डी के. ओके, सो दिस इज द इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इनफाइनाइट. ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग यहाँ पर हमने वेरिएबल क्या दिया t, इसे हम लोग x से भी लिख सकते हैं. ये हो गया हमारा एफ एस के इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन के एक्स डी एक्स. So here this fsk, the equation number 6, it is called the infinite Fourier sine transform of function fx for x ranges between 0 to infinity. And this equation number 5 fx, it is called the inverse infinite Fourier sine transform. Okay, next article is the Fourier sine transform in a definite interval, say minus L to L. So again consider fx be an odd function of x in interval minus L to L with period कितना हो गया इसका, L minus of minus L, that is 2L.
then the corresponding series is defined as fx is equal to, this is a Fourier series, summation n1 to infinity bn sin n pi x upon l, where this n is an integer value. ओके ये हमने लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन सीरीज। यहाँ पर क्या हमारे पास ए नोट और ए एन की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं, और इस बी एन की वैल्यू क्या होगी हमारी, वन अपॉन एल माइनस एल टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स हमारा क्या है, एक ओड फंक्शन है, साइन भी हमारा एक ओड फंक्शन है, देयरफॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ओड फंक्शन एंड अनदर ओड फंक्शन विल बी एन इवन फंक्शन, देयरफॉर दिस एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाय एल, दिस इज एन इवन फंक्शन एंड बाय डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शंस यहाँ पर हमारा इंटीग्रल चेंज हो जाएगा टू टाइम्स इंटीग्रेशन ज़ीरो टू एल में। देयरफॉर बी एन की वैल्यू हमारी आ गई टू अपॉन एल इंटीग्रेशन ज़ीरो टू एल दिस थिंग एज इट इज़ एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। ओके, नाउ वी विल यूज़ द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फॉर द फाइनाइट सीरीज एफ एस एन। ओके, it is equal to under root 2 upon L integration 0 to L f x sin n pi x upon L dx। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन नंबर 9 एंड इक्वेशन नंबर 8 को कंपेयर करें then we see that this bn is just under root 2 upon L times of this fsn, rest of the things are the same in both the equations। ठीक है, now using this equation number 7 we get fx is equal to summation n1 to infinity bn sin n pi x by l। तो bn की वैल्यू हमने ये वाली यहाँ पर पुट कर दी इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट टू अपॉन एल समेशन एज इट इज़, bn की जगह हमने क्या पुट कर दिया, अंडर रूट टू अपॉन एल एफ एस एन इंटू दिस एज इट इज़ साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, क्योंकि bn हमारा क्या था, अंडर रूट टू अपॉन एल एफ एस एन था। ठीक है, सो दिस इक्वेशन नंबर 9 एफ एस एन इज इक्वल टू अंडर रूट टू अपॉन एल ज़ीरो टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। दिस इज कॉल्ड द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन in interval 0 to L, and this function fx here, this is called the inverse finite Fourier sine transform of this capital Fsn। okay, और नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये एज इट इज़ है जो हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म था। अगेन इसमें हम दो तरह से इसे डिफाइन करेंगे, एक इनफाइनाइट में और एक फाइनाइट इंटरवल के अंदर। ओके, सो लेट अस कंसिडर अ फंक्शन एफ एक्स बी एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स इन द रेंज 0 to infinity, then the Fourier integral theorem says that fx is equal to 2 upon pi integration 0 to infinity dk cos kx integration 0 to infinity ft cos kt dt। Say equation number 9। Now the Fourier cosine transform fck is defined as under root 2 upon pi integration 0 to infinity ft cos kt dt। नाउ अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमें मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी के कोस के एक्स, और इस इंटीग्रेशन की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये एफ सी के। ओके, ये हमने पुट कर दिया एफ सी के। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी के कोस के एक्स एफ सी के, एंड from here this equation can also be written as fck is equal to under root 2 upon pi integration 0 to infinity fx cos kx dx। just हमने वेरिएबल चेंज कर दिया from t to x। okay, so this equation fck is called the infinite Fourier cosine transform for fx for 0 to infinity, and this fx is called the inverse infinite Fourier cosine transform। okay, the next thing is about the finite interval। So let us consider a function fx be an even function of x defined in the interval minus L to L, that is of the period 2L। okay, then the corresponding Fourier series हमारी क्या आ जाएगी, a नॉट अपॉन टू प्लस समेशन n1 to infinity a n cos n pi x upon L। यहाँ पर हमारा क्या होगा, बी एन की कोई सीरीज नहीं होगी, बी एन ऑल बी एन विल बी ज़ीरो हेयर बिकॉज हमारी क्या है, इवन फंक्शन है, देयरफॉर साइन सीरीज हमारी यहाँ पर एब्सेंट रहेगी।
Now an is equal to 2 upon L 0 to L fx cos n pi x upon L dx, where n की वैल्यू क्या हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो होगी तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ए नोट मिलेगा। ए नोट हमारा क्या आएगा यहाँ से, 2 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ एक्स डी एक्स। बट बाय डेफिनेशन ए नोट क्या होता है हमारा, 1 अपॉन एल। यहाँ पर क्या होता है, ए नोट में 1 अपॉन एल होता है, ठीक है। तो उस ए नोट को इस ए एन की सीरीज़ के अंदर हम मिलाने के लिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर, ए नोट अपॉन टू ले लिया है, ठीक है, ताकि हम लोग ए नोट को भी क्या लिख सके, बाय डेफिनेशन 2 अपॉन एल लिख सके, यानी कि इसके जैसा ही हम लोग लिख सके इसके लिए, ठीक है। तो हमने ए नोट भी इसी सीरीज़ के अंदर हमने कंसिडर कर लिया है, ठीक है। नाउ द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म FCN for a finite interval is defined as under root 2 upon L integration 0 to L fx cos n pi x upon L dx, ठीक है। ए नोट क्या है हमारा, बाय दिस डेफिनेशन 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ एक्स डी एक्स, दैट इज ए नोट अपॉन टू हमारा क्या गया, वही 1 अपॉन टू इंटू 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ एक्स डी एक्स, दैट इज 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ एक्स डी एक्स, जो हमारी डेफिनेशन है सेम, ठीक है। बट एफ सी ज़ीरो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से एफ सी ज़ीरो दैट इज एन इज इक्वल टू ज़ीरो हमने पुट कर दिया, अंडर रूट 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ एक्स डी एक्स, यही आएगा हमारा। अब अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, ए नोट अपॉन टू एंड एफ सी ज़ीरो को कंपेयर करें, तो ए नोट अपॉन टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन टू, तो एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पर 2 अपॉन एल है, यहाँ पर अंडर रूट 2 अपॉन एल है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 2 अपॉन एल हमारे पास रहता है, और इस इंटीग्रेशन की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं यहाँ से, एफ सी ज़ीरो, दैट इज ए नॉट अपॉन टू की वैल्यू आ गई हमारी 1 अपॉन टू इंटू अंडर रूट 2 अपॉन एल एफ सी ज़ीरो, और वी कैन से दैट 1 अपॉन अंडर रूट 2 एल एफ सी ज़ीरो, ये आ गई हमारी ए नॉट अपॉन टू की वैल्यू, ठीक है। एन क्या है हमारा, 2 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ एक्स कोस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। बाई डेफिनेशन यहाँ से एफ सी एन के साथ अगर हम लोग इसे कंपेयर करें तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये अंडर रूट 2 अपॉन एल, और इस इंटीग्रेशन की जगह क्या आ जाएगा हमारा एफ सी एन, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ ए नॉट अपॉन टू और ए एन की वैल्यूज़ हम लोग इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं हमारी फोरियर सीरीज़ के अंदर, तो हमें एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू this a naught upon 2 that is 1 upon under root 2l fc0 plus summation n1 to infinity an, that is this value under root 2 upon l fcn into cos n pi x upon l. So this is our Fourier series, the cosine series for an even function, and this equation is called the inverse finite Fourier cosine transform of fcn. And this equation fcn, here we have this fcn, this is called the finite Fourier cosine transform of function fx in the interval for x varies between 0 to l. Okay, so this is it about the Fourier transform, Fourier sine transform, and Fourier cosine transforms. Hope you like these videos. Keep watching my videos. Thank you.